السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحیق المختوم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کے حوالے سے آج جانیں گے احد کی لڑائی کا آخری مرحلہ۔ اس کے بعد ہم انشاءاللہ قرآن کی آیتوں کی تفسیر کے بارے میں جانیں گے۔ احد کی لڑائی کی ہار جیت کا ایک وشلیشن۔ یہ ہے غزوہ احد اپنے تمام مرحلوں اور پورے ویچروں کے ساتھ۔ اس غزوے کے انجام کے بارے میں بڑی لمبی چوڑی بحثیں کی گئی ہیں کہ کیا اس سے مسلمانوں کی ہار مانا جائے یا نہیں۔ جہاں تک تتھیوں کا تعلق ہے جو اس میں شک نہیں کہ لڑائی کے دوسرے راؤنڈ میں مشرکوں کو شریشٹھتا پراپت تھی اور لڑائی کا میدان انہی کے ہاتھ میں تھا۔ جانی نقصان بھی مسلمانوں کا ہی زیادہ ہوا اور بڑے بھیانک روپ میں ہوا۔ مسلمانوں کا ایک گروہ تو یقیناً ہار کھا کر بھاگا اور لڑائی کی گتی مکی سینا کے پکش میں رہی، لیکن ان سب کے باوجود کچھ باتیں ایسی ہیں کہ جن کے بنیاد پر ہم اسے مشرکوں کی جیت نہیں کہہ سکتے۔ ایک تو یہی بات قطعی طور پر معلوم ہے کہ مکی سینا مسلمانوں کے کیمپ پر قبضہ نہیں کر سکی تھی اور مدنی فوج کے بڑے حصے نے سخت اتھل پتھل اور اویوستھا کے باوجود پلاین نہیں کیا تھا، بلکہ بڑی ویرتا سے لڑتے ہوئے اپنے سیناپتی کے پاس جمع ہو گیا۔ ساتھ ہی مسلمانوں کا پلہ اس حد تک نہیں ہلکا ہوا تھا کہ مکی سینا ان کا پیچھا کرتی۔ اس کے علاوہ کوئی ایک بھی مسلمان ان کی قید میں نہیں گیا، نہ کفار نے غنیمت کا کوئی مال حاصل کیا۔ پھر کفار لڑائی کے تیسرے راؤنڈ کے لیے تیار نہیں ہوئے، حالانکہ اسلامی فوج ابھی اپنے کیمپ میں ہی تھی۔ اس کے علاوہ کفار لڑائی کے میدان میں 1 یا 2 دن یا 3 دن بھی نہیں ٹھہرے، حالانکہ اس زمانے کے وجیتاؤں کا یہی چلن تھا اور وجے کی یہ ایک بڑی ضروری نشانی تھی، مگر کفار نے بالکل جھٹ پٹ واپسی کر لی اور مسلمانوں سے پہلے ہی لڑائی کا میدان خالی کر دیا۔ انہیں مال لوٹنے کے لیے مدینے میں بھی داخل ہونے کی ہمت نہ ہوئی، حالانکہ یہ شہر کچھ ہی قدم کے فاصلے پر تھا اور فوج سے پوری طرح خالی اور ایک دم کھلا پڑا تھا، راستے میں کوئی رکاوٹ بھی نہ تھی۔ ان ساری باتوں کا سار یہ ہے کہ قریش کو زیادہ سے زیادہ صرف یہ ملا کہ انہوں نے ایک وقتی موقع سے فائدہ اٹھا کر مسلمانوں کو ذرا کڑی قسم کی پریشانی میں ڈال دیا، ورنہ اسلامی فوج کو گھیر لینے کے بعد اسے پورے طور پر قتل کر دینے یا قید کر لینے کا جو فائدہ انہیں سامرک درشٹی سے انواریہ روپ سے ہونا چاہیے تھا، اس میں وہ فیل ہو گئے اور اسلامی فوج کچھ بڑا نقصان اٹھانے کے باوجود گھیرا توڑ کر نکل گئی اور اس طرح کا گھاٹا تو بہت ہی بار خود وجیتاؤں کو سہن کرنا پڑتا ہے۔ اس لیے اس معاملے کو مشرکوں کی وجے کا نام نہیں دیا جا سکتا، بلکہ واپسی کے لیے ابو سفیان کی جلدی اس بات کا پتہ دیتی ہے کہ اسے خطرہ تھا کہ اگر لڑائی کا تیسرا دور شروع ہو گیا تو اس کی فوج بڑی تباہی اور ہار سے دوچار ہو جائے گی۔ اس کی درشٹی ابو سفیان کے اس نرنے سے ہوتی ہے جو اس نے غزوہ حمر الاسد کے بارے میں اپنایا تھا۔ ایسی استھتی میں ہم اس غزوے کو کسی ایک فریق کی وجئی اور دوسرے کی پراجے کہنے کے بجائے انواریہ لڑائی کہہ سکتے ہیں، جس میں ہر فریق نے سفلتا اور وفلتا سے
अपना अपना हिस्सा हासिल किया। फिर लड़ाई से मैदान से भागे बिना और अपने कैंप को दुश्मन के कब्जे के लिए छोड़े बिना लड़ाई से दामन बचा लिया। और अनिर्णित लड़ाई कहते ही इसी को है। यही संकेत अल्लाह के इस इरशाद से भी निकलता है, मुशरिक क़याम का पीछा करने में ढीले ना पड़ो। अगर तुम दुख महसूस कर रहे हो तो तुम्हारी ही तरह वे भी दुख महसूस कर रहे हैं, और तुम लोग अल्लाह से उस चीज़ की उम्मीद रखते हो जिसकी वे उम्मीद नहीं रखते। इस आयत में अल्लाह ने स्पष्ट संकेत दिया है कि दोनों फरीक एक ही जैसी स्थिति में हैं और दोनों फरीक इस हालत में वापस हुए हैं कि कोई भी विजयी नहीं। इस ग़ज़वे पर कुरान की समीक्षा। बाद में कुरान मजीद की आयतें उतरी तो उसमें इस लड़ाई के एक एक मरहले पर रोशनी डाली गई और समीक्षा करते हुए उन कारणों को बताया गया जिनके नतीजे में मुसलमानों को उस बड़े नुकसान का सामना करना पड़ा था, और बतलाया गया कि इस तरह के निर्णायक अवसरों पर ईमान वालों और यह उम्मत जिसे दूसरों के मुकाबले में खैर उम्मत होने का दर्जा हासिल है, जिन ऊंचे और अहम मकसद के लिए वजूद में लाई गई है, उनके लिहाज से अभी ईमान वालों के अलग अलग ग्रुपों में क्या क्या कमज़ोरियाँ रह गई हैं। इसी तरह कुरान मजीद ने मुनाफिकों की सोच का उल्लेख करते हुए उनके चेहरे पर से पर्दा उठाया, उनके सीनों में खुदा और रसूल के खिलाफ छिपी हुई दुश्मनी स्पष्ट की, और भोले भाले मुसलमानों में इन मुनाफिकों और इनके भाई यहूदियों ने जो वसवसे फैला रखे थे उन्हें दूर किया और उन प्रशंसनीय हिकमतों और मकसदों की ओर इशारा फरमाया जो इस लड़ाई का सार थी। इस लड़ाई के बारे में सूरह आल इमरान की 60 आयतें उतरी। सबसे पहले लड़ाई के शुरू के मरहले का उल्लेख हुआ। कहा गया, याद करो जब अपने घरों से निकलकर उहद के मैदान में गए और वहाँ ईमान वालों को लड़ाई के लिए जगह जगह तैनात कर रहे थे। फिर आखिर में इस लड़ाई के नतीजे और हिकमतों पर भरपूर रोशनी डाली गई और कहा गया, ऐसा नहीं हो सकता कि अल्लाह ईमान वालों को इसी हालत पर छोड़ दे जिस पर तुम लोग हो, यहाँ तक कि गंदे को पाक से अलग कर दे, और ऐसा नहीं हो सकता कि अल्लाह तुम्हें अनदेखी चीज़ों का पता दे दे, लेकिन वह अपने पैगंबरों में से जिसे चाहता है चुन लेता है। बस अल्लाह और उसके रसूलों पर ईमान लाओ, और अगर तुम ईमान लाए और तक़वा अपनाया तो तुम्हारे लिए बड़ा बदला है। ग़ज़वे में काम कर रही अल्लाह की हिकमतें। अल्लामा इब्ने क़ियाम ने इस विषय पर बहुत विस्तार से लिखा है। हाफिज़ इब्ने हज़र रज़ी अल्लाह अन्हुमा फरमाते हैं, उलमा ने कहा है कि ग़ज़वा उहद और उसके अंदर मुसलमानों को पेश आने वाली परेशानियों में रब की बड़ी ज़बरदस्त हिकमतें और फ़ायदे काम कर रहे थे, जैसे मुसलमानों को मुसीबत के बुरे अंजाम और गलत काम करने के अंजाम से खबरदार करना, क्योंकि तीरंदाजों को अपने केंद्र पर रहने का जो हुक्म अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया था, उन्होंने उसके खिलाफ काम करते हुए केंद्र छोड़ दिया था और इसी वजह से परेशानियों का सामना करना पड़ा था। एक हिकमत पैगंबरों की इस सुन्नत को जाहिर करना था कि पहले वे आजमाइश में डाले जाते हैं, फिर आखिरकार उन्हीं को कामयाबी मिलती है, और इसमें यह हिकमत छिपी हुई है कि उन्हें अगर हमेशा सफलता ही सफलता मिले तो ईमान वालों की सफ़ों में
वे लोग भी घुस जाएंगे जो ईमान वाले नहीं हैं। फिर सच्चे और झूठ में अंतर ना किया जा सकेगा, और अगर हमेशा हारते ही रहे तो उनके भेजे जाने का मकसद ही पूरा ना हो सकेगा। इसलिए हिकमत का तकाजा यही है कि दोनों शक्लों पेश आए ताकि सच्चे झूठे का अंतर मालूम हो सके। मुनाफिकों का निफाक मुसलमानों से छिपा हुआ था। जब यह घटना घटी और निफाक वालों ने अपनी कथनी करनी जाहिर कर दी तो इशारा साफ सामने आ गया और मुसलमानों को मालूम हो गया कि खुद उनके अपने घरों में भी उनके दुश्मन मौजूद हैं। इसलिए मुसलमान उनसे निपटने के लिए मुस्तैद और उनकी ओर से सावधान हो गए। एक हिकमत यह भी थी कि कहीं कहीं मदद के आने में देर से विनम्रता पैदा होती है और मन का अहम टूटता है। चुनाचे जब ईमान वाले आजमाइश से दो चार हुए तो उन्होंने सब्र के से काम लिया। अलबत्ता मुनाफिकों में रोना पीटना शुरू हो गया। एक हिकमत यह भी थी कि अल्लाह ने ईमान वालों के लिए अपने रुतबे के घर यानी जन्नत में कुछ ऐसे दर्जे तैयार कर रखे हैं जहाँ तक उनके कामों की पहुँच नहीं होती। इसलिए आजमाइशों की भी कुछ वजह तय कर रखी है ताकि उनकी वजह से इन दर्जों तक ईमान वालों की पहुँच हो सके। एक हिकमत यह भी थी कि शहादत अल्लाह के औलिया का सबसे ऊंचा दर्जा है, इसलिए यह दर्जा उनके लिए जुटा दिया गया। एक हिकमत यह भी थी कि अल्लाह अपने दुश्मनों को हलाक करना चाहता था, इसलिए उनके लिए ऐसी वजहें जुटा दी गई यानी कुफ्र और जुल्म और अल्लाह के औलिया को कष्ट पहुंचाने में हद से बढ़ी हुई सरकशी। फिर उनके इसी काम के नतीजे में ईमान वालों को गुनाहों से पाक साफ कर दिया और काफिरों को हलाक व बर्बाद कर दिया। आज से उहद की लड़ाई ख़त्म होती है। इंशाअल्लाह हम रमज़ान के पहले दिन से ही कुरान की तफसीर जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।